गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। चुनाव प्रचार के बीच ही सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य में कोरोना परिस्थिति की जानकारी दी। ममता ने कहा है कि अभी राज्य में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। আমাদের যেটা সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে দেখুন এটা তো একটা ডিজাস্টার, এটা তো একটা ক্যালামিটিস। কারণ ইলেকশন চললো, ক্যালামিটিসে আমরা অলওয়েজ কাজ করি, ডিজাস্টারে কাজ হয়, এমার্জেন্সি ইজ এমার্জেন্সি। সুতরাং এটা আমাদের অধিকার আছে এবং দায়িত্ব আছে, দায়বদ্ধতাও আছে। শুধুমাত্র যে যখন বেড়ে গেল তখন রাজনীতিতে চাকরি দিলে তো হবে না, আমাকে তো অ্যাভেলেবল করতে হবে। অক্সিজেনের স্ক্যারসিটি আছে এবং অক্সিজেনের স্ক্যারসিটি আছে বলে দেখা হচ্ছে যদি কেউ অক্সিজেনকে হোর্ডিং করে রাখে বা যদি কেউ ইচ্ছা করে দাম বাড়িয়ে দেয়, সেটা যদি না করতে পারে সেদিকে নজর রাখার জন্য আমরা বলেছি অফিসারদের। আমাদের 100 কোটি টাকা ফাইন্যান্সে রাখা হয়েছে ইমিডিয়েট, যেটা কোভিড ভ্যাকসিন কেনার জন্য একটা ফান্ড ক্রিয়েট করার জন্য ইমিডিয়েট 100 কোটি টাকার একটা ফান্ড কোভিড ভ্যাকসিন, যেটা ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনেশনের জন্য। আমি মনে করি আমরা ইতিমধ্যেই 93 লক্ষ লোককে ভ্যাকসিন দিয়েছি। 93 লক্ষ ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই আমরা দিয়েছি। তো 93 লাখ ডোজ দেওয়া হচ্ছে। 93 লাখ ডোজ দেওয়া মানে একটাতে ডাবল দিতে হয়। সুতরাং এটা যদি ডাবল হয়ে থাকে বা সিঙ্গেল হয়ে থাকে, মিলেমিশে হচ্ছে তো দুটো একটু বলা যাবে না। এটা 1 কোটির কাছাকাছি আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি। এখন আমাদের যদি পরিবার হিসেবে ধরেন, ধরুন 10 কোটি মানুষ পরিবার হিসেবে ধরলে আমাদের হয়তো 2.7 বা সামথিং এরকম পরিবার হবে। এক্স্যাক্টলি আমি এই নাম্বারটা বলতে পারছি না, সরি, বাট 2.5 তো হবে যদি আপনি 10 কোটি দিয়ে ধরেন। 10 কোটির মধ্যে 1 কোটি অলরেডি আমরা দিয়েছি, 93 লাখ। ইমিডিয়েট আমরা আরো 1 কোটি ইমিডিয়েট চাইছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের সাপ্লাই করার জন্য। তাহলে সাপ্লাই করলে কি হবে, আমার 1 কোটি ডোজ আমি পেয়েছি, আরো 1 কোটি ডোজ যদি পেয়ে যায়, তার মানে এটা 2 কোটি হবে। আবার 2 কোটি দিতে 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 তারপরে আবার নেক্সট এটা কমপ্লিট হলে তখন আমরা বাদবাকিটা বাজার থেকে কিনে নেবো বা এদের থেকে করে নেবো। অফকোর্স আমি প্রাইম মিনিস্টারকে লিখবো, তার কারণ আমি দেখেছি, আমি কতগুলো টুইট দেখেছি কিছুক্ষণ আগে, যে 150 টাকা যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দেওয়া হতো সেটা 400 টাকা করে দিয়েছে স্টেট এবং প্রাইভেটকে করে দিয়েছে 600। তো প্রাইভেটকেই বা 600 করবে কেন? আমার মনে হয় দেয়ার শুড নট বি এনি ডিসক্রিমিনেশন। এবং এখন যখন এটা বেশি প্রয়োজন ইমার্জেন্সি, তখন মানুষকে সাহায্য দেওয়া উচিত না ব্যবসা করা উচিত? কোনটা? যেকোনো একটা করে। वीरभूम जिले के पाड़ोई में एक बीजेपी नेता के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरित बीजेपी नेता की पहचान घनश्याम महार के रूप में हुई है। इस घटना को लेकर टीएमसी पर आरोप लगाया गया है। हावड़ा के शालीमार में एक तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को लक्ष्य कर गोली मारी गई। उसकी हालत गंभीर है और एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कार्यकर्ता का नाम भोला राय है। देश में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। रोज नए रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसी कारण झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। असम राज्य के सिलचर एयरपोर्ट का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ करीब 300 हवाई यात्री अनिवार्य कोविड टेस्ट कराए बगैर ही एयरपोर्ट से भाग गए। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की गंभीर समस्या चल रही है। अभी भी वहाँ भारी किल्लत है, आईसीयू बेड की दिक्कत है। हमने केंद्र सरकार से 700 से 800 आईसीयू बेड देने का अनुरोध किया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारत में कोरोना वैक्सीन का तीसरा फेज 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 से ज्यादा उम्र वाले यानी 1 जनवरी 2004 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है। इस बीच गुरुवार को घोषणा कर दी गई है कि 18 से अधिक आयु का हर शख्स अब कोरोना वैक्सीन के लिए शनिवार से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना वायरस की चपेट में आम से लेकर खास हर तरह के लोग आ रहे हैं। भारत में रोजाना 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर A.K. वालिया का कोरोना से निधन हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बेलगाम होने के बीच
सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ये आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। कोरोना महामारी के चलते देश के सुप्रीम कोर्ट में कामकाज बंद कर दिया गया है। दरअसल 22 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुत ही जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। ब्रिटेन की तरफ से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों के बाद एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट्स रद्द कर दी है। कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 24 से 30 अप्रैल के बीच उड़ानें रद्द कर दी गई है। राफेल लड़ाकू विमान की 5वीं खेप फ्रांस से भारत पहुंच चुकी है। इस खेप में 4 राफेल लड़ाकू विमान हैं। इस खेप को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने फ्रांस के मैरीगोनिक बाद्रू एयरबस से भारत के लिए बुधवार की सुबह रवाना किया है। कोरोना वायरस ने देश की इस वक्त हाहाकार मचा रखी है। वहीं अब कोरोना संक्रमण की लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का नाम जुड़ गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश वर्मा ने ट्वीट के माध्यम से अपने और अपनी पत्नी के कोरोना संक्रमित हो जाने की खबर दी है। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जो पहले से काफी ज्यादा भयानक है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार शाम को वायरस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में 1 लाख से अधिक एक्टिव केस है। हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं, तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी, उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते थे वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष, और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से, इस वेव से भी हम उसी सफलता से बाहर निकलें जैसे कि हम पहली वेव से जूझ कर बाहर निकले थे। एक चीज़ है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।